Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing the revision of our chapter, The Great Sand Artist. Okay. Firstly, we will start with bookwork. In bookwork, we will study about past continuous tense and present continuous tense. Past continuous tense means which helping verb we will use in past continuous tense? Was, were. Was, were. And in present continuous tense we will use is, am and are. Was used for singular, were used for plural. Is used for singular, am used with I and are used for plural. Where we will use past continuous tense? When we talk about an action that was going on for a period of time in the past. जब past में कोई work हो रहा हो, okay? And in another case, when you have to give in two action, one action was already going on and one another action happened, okay? Present continuous tense, when an action that is going on at the present right now. When we talk about an temporary action that may not actually been happening at the moment of speaking these days. When we talk about something that has been planned in the near future. Okay, like we are going to Mumbai next week. This show to the future, but we are planning for the near future, but we talk about something. Okay. Now come to the vocabulary. In vocabulary, compound adjectives. In compound adjective is formed when two or more words come together to describe a noun. It is actually written with a hyphen between the words. In two words, we will put one hyphen like high-heeled shoes. Lit, you have to give an option, brightly lit room. Overcrowded bus. Four-legged table. Dark-colored trouser. Kind-hearted person. Okay. Now come to this topic. What you have to do here, bacha? You have to given three adjectives. Eye-catching, long-lasting, trustworthy. Eye-catching means something that attract to your eye. Long-lasting means durable. Trustworthy, on which you can believe. Eye-catching jewels, yes. Colors, yes. Eye-catching air तो नहीं होती, so it's a wrong word. लॉन्ग लास्टिंग बैग्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, शूज़ होते हैं, लेग थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होंगे. ट्रस्टवर्दी मशीन, हॉर्स, फ्रेंड, रोड थोड़ी ट्रस्टवर्दी होती है. ओके. नाउ कम टू द पंक्चुएशन. इन पंक्चुएशन वी विल स्टडी अबाउट apostrophe sign. We use an apostrophe to show that an object or quality belong to a person, animal or thing. For nouns in plural form ending with s, we will put the apostrophe at the end of the noun. We do the same for proper noun ending in s. It means बच्चा कि हम जो plurals होगा उसके apostrophe कहाँ लगाएंगे? s के बाद. और सिंगुलर में apostrophe कहाँ लगाएंगे? s से पहले. और यदि प्रॉपर नाउन की एंडिंग s से हो रही है तो हम कहाँ apostrophe लगाएंगे? s के बाद. See in the examples. These are the girls' umbrellas. तो कहाँ लगेगा apostrophe? After s. Sushil's train. सुशील की ट्रेन. After सुशील we will put the apostrophe. The ladies' bags were. Plural. तो after s. Ladies में s के बाद apostrophe लगाओगे. Annie wrapped Miss John's gift carefully. Miss John का gift. After John. Alexa's ball accidentally hit Jerry's father. Alexis की बॉल ने जेरी के फादर को हिट किया. आफ्टर एलेक्स apostrophe यानी कि s से पहले. जेरीज में भी s से पहले. द कैट्स टेल्स प्लूरल तो कहाँ आएगा? कैट्स के बाद यानी कि s के बाद. ओके. नाउ कम टू द नोटबुक वर्क पार्ट. फर्स्टली यू हैव टू लर्न दीज डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके. स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट, कॉम्पिटिशन, seashore, patron, sandcastle, tsunami, international, institute, contribution, civilian and appealing. Okay. Now come to the word meaning. Sculptures means
वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्ट का वर्क दैट आर सॉलिड फिगर्स गिविंग शेप टू मेटल, वुड, क्ले एंड सोन, जिसमें एक सॉलिड फिगर बनाई जाती है, किसको शेप देके, मेटल को, वुड को और क्ले को. बाय चांस मीन्स बाय लक एंड नॉट बाय रीजन, कोई चीज़ अचानक हो जाए बिना किसी रीज़न के. डॉन, व्हेन द फर्स्ट रे ऑफ द सन बिगेन टू अपीयर इन द स्काई, जब सूरज की पहली किरण स्काई में आती है. डस्क, व्हेन द सन रेज हैव गॉन, जब सूर्य की किरणें चली जाती हैं, बट इट इज़ नॉट फुली डार्क येट, लेकिन अब ये पूरा डार्क नहीं होता है. स्टॉप्ड बाय, विजिटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वाइल गोइंग समवेयर एल्स, जब कहीं जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए रुकना. अबनॉर्मल, अनयूजुअल. सुनामी, एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द, एक बहुत ही एक्सट्रीम पावरफुल जो लार्ज वेव है कहाँ जाएगी, इन द सी. सैंड कास्टल, अ मॉडल ऑफ अ कास्टल बिल्ड आउट ऑफ अ सैंड, जो सैंड से एक मॉडल बनाया जाता है. इन विच वर्ल्ड कप डिड सुदर्शन पार्टिसिपेट, सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप, किसमें पार्टिसिपेट किया था, सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप में. What was the name of the artwork for which सुदर्शन won the People's Choice Award, किसमें सुदर्शन ने पीपल चॉइस अवार्ड जीता था, सेव ट्री सेव द फ्यूचर में. इसमें ब्रीफ में आंसर देना था इसलिए हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं. हाउ डिड सुदर्शन स्टार्ट स्पेंडिंग हिज टाइम आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल, अपना स्कूल छोड़ने के बाद सुदर्शन ने कैसे टाइम स्पेंड किया. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम एट द बीच, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता था, बीच पे. ओके, बीच पे करता था ना. वेयर डिड सुदर्शन स्टार्ट वर्किंग व्हेन ही वॉज 10 years old, जब वो 10 years old का हुआ तो उसने कहाँ वर्क करना स्टार्ट किया. ही हैड टू स्टार्ट वर्किंग एज अ डोमेस्टिक वर्कर इन हिज नेबरहुड, उससे अपने नेबरहुड में डोमेस्टिक वर्कर का वर्क शुरू किया. रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. सुदर्शन हैड अ ब्रिलियंट आइडिया. व्हाट डिड सुदर्शन लव डूइंग, सुदर्शन को क्या करना पसंद था. Sudarshan loved art, but he never had enough money to buy pencils, paper and paint. सुदर्शन को आर्ट करना अच्छा लगता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे पेंसिल, पेपर और पेंट के लिए. What was the idea that सुदर्शन had? सुदर्शन के पास कौन सा आइडिया था. He decided to make the endless seashore his paper. उसने endless seashore को अपना पेपर बनाया. His hands would do the work of pencil. उसके हैंड्स ने पेंसिल का वर्क किया. He dug his fingers into the wet sand. गीली सैंड में उसने अपनी फिंगर से डग बनाया एंड स्टार्टेड मेकिंग पैटर्न, और पैटर्न बनाना शुरू कर दिया. वन डे अ टूरिस्ट पासिंग बाय सो सुदर्शन वर्किंग ऑन अ स्कल्पचर. व्हाट डिड द टूरिस्ट टेल सुदर्शन, टूरिस्ट ने सुदर्शन से क्या कहा. द टूरिस्ट टोल्ड हिम दैट द नोज ऑफ द फिगर वॉज वेरी लार्ज एंड लुक्ड अबनॉर्मल, कि जो फिगर का नोज है वो बहुत लंबा है और अबनॉर्मल लग रहा है. What did सुदर्शन डू आफ्टर दैट, सुदर्शन ने उसके बाद क्या किया. सुदर्शन went back to the beach, वो बीच पे वापस किया. For the next few days, कुछ दिनों तक, and made the figure over and over again, और बार बार फिगर को बनाता रहा. Until people told him that the nose was perfect, जब तक लोगों ने ये नहीं कह दिया कि नोज परफेक्ट थी. Now answer in detail. What happened at the sand sculpting World Cup in 2014? 2014 में सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड कप में क्या हुआ. In the year 2014, Sudarshan Patnik won the People's Choice Award at the World Cup for his work Save Tree and Save the Future. उसने सेव ट्री और सेव फ्यूचर के लिए पीपल चॉइस अवार्ड जीता. आर्टिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टुक पार्ट एंड ही वॉज द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया से वो अकेले थे. एक्सप्लेन हाउ सुदर्शन स्टार्टेड मेकिंग सैंड स्कल्पचर. सुदर्शन ने कैसे सैंड स्कल्पचर बनाना शुरू किया. वन डे सुदर्शन सेट एट द बीच, एक दिन सुदर्शन बीच पर बैठ गया. वॉचिंग द सी वेव्स को देखता हुआ. ही सो हाउ द वेव्स कम टू द शोर, उसने देखा कि कैसे सी शोर पे आ रही है. एंड मेड पैटर्न इन द सैंड, और सैंड पे पैटर्न बनाया. ही डग हिज फिंगर्स इन टू द वेट सैंड, और वेट सैंड में उसने अपनी फिंगर्स से खोदा. एंड स्टार्टेड मेकिंग पैटर्न्स, और क्या बनाना शुरू किया, पैटर्न्स बनाना शुरू किया. स्लोली ही स्टार्टेड मेकिंग सैंड कास्टल, और धीरे धीरे सैंड कास्टल बनाने लगा. वट डज सुदर्शन ट्राई टू शो थ्रू हिज आर्ट वर्क, उसने अपने आर्ट वर्क से क्या दिखाया. ही समटाइम गिव्स इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कभी कभी वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस देता. थ्रू हिज स्कल्पचर, अपने स्कल्पचर से. सम ऑफ हिज स्कल्पचर शो हाउ इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन दिखाए जाते. एंड सम इंपॉर्टेंट पीपल, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल, इवेंट्स. ही ऑल्सो क्रिएटेड स्कल्पचर डेडिकेटेड टू ग्रेट लीडर्स, उसने
ग्रेट लीडर्स को डेडिकेट करते हुए भी स्कल्पचर्स बनाए. ओके, I hope students you have understood the chapter and now you are ready for the test. Bye bye and have a nice day.